Hello students, good morning. Welcome to SIE Sonic classes. Students, we were reading chapter 3, The Elephants and the Mice of our English literature book as we Sasta. In our last video, our topic was articles. So students, we have read about article and included this topic articles. We have completed exercise M, write A or N in the blanks of this chapter 3, which is page number 26 in our English literature book as we Sasta. And students, we have also completed exercise F, answer the following questions of this chapter 3 in our Fair English Literature notebook in our last video. And since today's our topic is also article, but today we will solve exercise A of this chapter 3, which is page number 26, and after it students we will solve exercise B and O of this chapter 3, which is page number 27 in our English literature book as we start. So all students with special test in your class and listen to my words clearly, because today we are going to solve exercise A, B and O, which is related to our topic article of this chapter 3. Okay, so let's see. Language lab. Okay, all students look at the page number 26. Okay, language lab, Bhasha. Okay, language means Bhasha, lab means Prayogshala. Okay, language lab, it means Bhasha Prayogshala. Your exercise A is listen to the audio, then fill in the blanks with A or N. Okay, listen to the audio. Listen means suniye. Okay, listen means suniye to the audio. Okay, इट्स मीन होता है ऑडियो को सुनिए. ओके, एंड देन फिल इन दी ब्लैंक्स विथ ए और एन. देन मीन्स द फिल इन दी ब्लैंक्स, इट्स मीन रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए विथ मीन्स ए और एन. ओके, ए और एन व्हाट मीन्स एक होता है. ओके, एंड स्टूडेंट्स, वी हैव रीड आर्टिकल एंड वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज ए बिफोर वर्ड्स विच स्टार्टेड विथ कॉन्सोनेंट साउंड, एंड वी ऑलवेज यूज एन before words which started with vowel A, E, I, O, U sounds. Okay, so students, your exercise A is listen to the audio, then fill in the blanks with A or N. It's mean audio को सुनिए, तब रिक्त स्थानों की पूर्ति A और N से करिए. Okay, so let's see your first number sentence is my parents and I went to blank animal and bird park. Okay, my parents means mother and father, it's mean माता पिता. My parents it's mean मेरे माता और पिता, and means और, I means मैं, went means गए. Went it's a second form of go. Go की second form होती went. Go means जाना, went means गए. Okay, went to means गए. Okay, and animal means जानवर, and means और bird park. Okay, bird park it's mean bird means पक्षी and park means बाग. Okay, तो students, here we use and before this word animal. Okay, because this word animal start with vowel sound. Okay, students, read with me. Animal A से start हो रहे ना. A students, we have read that A it's our vowel. एक vowel है और जब इसको read कर रहे तो vowel sound कर रहा है. Animal है ना, A से start हो रहा है. And we have read that we also use and we have always use and before words which start with vowel sound है ना. ऐसे वर्ड जो vowel sound से start होते ए ई आई ओ यू के sound से start होते उनके पहले n का use करते ना. तो students, write down here before this word animal and an. Okay, and students, the mean of this first number sentence is my parents and I went to an animal and bird park. It's mean मेरे माता पिता और मैं एक जानवर और पक्षी बाग में गए. ओके, मेरे माता पिता और मैं एक जानवर और पक्षी बाग में गए. ओके, लेट्स सी सेकेंड नंबर सेंटेंस. वी सा ब्लैंक टाइगर रोमिंग इन द फील्ड. ओके, वी मीन्स हमने, सा मीन्स देखा, सा इज द सेकंड फॉर्म ऑफ सी मीन्स देखना, सा मीन्स देखा. ओके, ब्लैंक टाइगर रोमिंग इन द फील्ड. टाइगर मीन्स चीता. ओके, बाघ. रोमिंग मीन्स घूमते हुए. ओके, रूम आर डबल एम, रूम मीन्स होता है कमरा, बट रोमिंग ROAMING, रोमिंग मीन्स होता है घूमना. ओके, तो घूम रहा था. इन द फील्ड मीन्स मैदान. ओके, तो स्टूडेंट्स, हियर वी यूज ए बिफोर दिस वर्ड टाइगर बिकॉज दिस वर्ड टाइगर स्टार्ट विथ consonant sound. Okay, students, let's see, read with me this word tiger. टा से start हो रहा है ना, T. Okay, ट it's mean T से start हो रहा है and we have read that T it's our consonant word. Students, when we read this word tiger then it's a beginning with consonant sound से start हो रहा है ना. टाइगर T से start हो रहा है, T हमारा consonant होता है तो consonant sound से start हो रहा है. and we have read that we always use A before words which start with consonant sound. So students, write down here A before this word tiger. Okay, because this word tigers beginning with a consonant sound. Clear? And the mean of second number sentence is we saw a tiger roaming in the field. It's mean हमने मैदान में एक टाइगर को, एक बाघ को घूमते हुए देखा. क्लियर? लेट्स सी थर्ड नंबर सेंटेंस. और थर्ड नंबर सेंटेंस इज दैन, वी शा ब्लैंक डियर. ओके,
तो स्टूडेंट्स देन मीन्स था, ओके, वी मीन्स हमने, सा मीन्स देखा, सा इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ सी मीन्स देखना, सा मीन्स देखा, ओके. Blank deer, deer means hiran, okay. So students, we use a before this word deer because this word deer start with consonant sound से start हो रहे ना. Students read with me, deer d से start हो रहे ना, and we have read that d it's our consonant d होता है consonant, और जिसको ये जो word है deer को read कर रहे तो consonant sound कर रहा है ना, इसकी beginning consonant sound से हो रही, deer डस है ना. तो student we have read that we always use a before words which start with consonant sound. तो चूँकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसके पहले ए का यूज़ करेंगे. तो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर ए बिफोर दिस वर्ड डियर बिकॉज दिस वर्ड डियर स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड, ओके. एंड द मीन ऑफ दिस सेंटेंस इज देन वी सा अ डियर, इट्स मीन तब हमने एक हिरन देखा. क्लियर. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. योर नेक्स्ट सेंटेंस इज एन ब्लैंक एलिफेंट वाज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, ओके. तो स्टूडेंट्स एलिफेंट मीन्स हाथी, वाज मीन्स था, ड्रिंकिंग मीन्स पी रहा था, वाटर मीन्स पानी, फ्रॉम मीन्स से, आ मीन्स एक, पॉन्ड मीन्स तालाब, ओके. तो स्टूडेंट्स वी यूज एन बिफोर दिस वर्ड एलिफेंट बिकॉज दिस वर्ड एलिफेंट स्टार्ट विथ वोवेल साउंड ई. Students read with me this word elephant, okay. Students, we can see that this word when we write this word then it's spelling ELEPHANT, okay. तो students जब इस word को write करें तो इसकी spelling है ELEPHANT, इसके जो beginning है वो E letter से हो रही, okay. But students when we read this word elephant then it start with a ए साउंड विच इज़ आवर वोवेल साउंड. ए साउंड से स्टार्ट हो रहा है एलिफेंट, ओके. हम लोग एलिफेंट कभी नहीं रीड करते, हम लोग एलिफेंट रीड करते हैं ना, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ओके. एंड स्टूडेंट्स वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज एंड बिफोर वर्ड्स विच स्टार्ट विद अ वोवेल साउंड, ओके. सो कि स्टूडेंट्स सिंस दिस वर्ड स्टार्ट विद वोवेल साउंड तो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर बिफोर दिस वर्ड एलिफेंट एंड, ओके. तो students write down here and, okay. And then the mean of this sentence is an elephant was drinking water from a pond. It's mean कि एक हाथी तालाब से पानी पी रहा था. Clear? Let's see next sentence. Your next sentence is blank and blank eagle was sitting on the branch of a hug tree, okay. It's mean eagle means teal, was means थी, okay. Was it's a past continuous tense helping verb in singular form. Sitting means बैठी, okay. बैठी थी. On means पर, the branch means शाखा, off means की, a means एक, hug means large बड़ा, okay. Tree means पेड़. It's mean students we can see that this word eagle start with vowel sound, okay. Students read with me eagle e sound से start हो रहा है and we know that e it's our vowel e और this word eagle sound vowel sound, okay. vowel sound कर रहे हैं ना eagle है ना, and we have read that we always use and before this word which start with a vowel sound. तो ये जो वर्ड है ये वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो इससे पहले हम एन का यूज़ करेंगे. क्लियर. तो सेन राइट डाउन हियर एंड बिफोर दिस वर्ड ईगल देन अवर सेंटेंस बिकम एन ईगल वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ हग ट्री. इट्स मीन एक चील एक बड़े पेड़ की शाखा पर बैठी थी. क्लियर. Let's see next sentence. Your next sentence is it was blank sunny day, okay. The stands sunny it's a start with a consonant sound. Stand read with me this word sunny. Shani, okay. Sunny it's start as which is our consonant sound, okay. ये हमारा consonant sound से start हो रहा है. sunny सा से है ना, सा हमारा चूँकि consonant है जब इसको read करें तो consonant sound कर रहा है, okay. And we have read that we always use a before words which start with consonant sound, okay. This then write down here a before this word sunny because this word sunny start with a consonant sound, okay. Then our sentence become it was a sunny day. It's mean कि यह एक धूप वाला दिन था. इट्स मीन ये समर का टाइम डिस्क्राइब कर रहा है. समर के टाइम में ये पार्क में रोमिंग करने गया था, ओके. तो इट वाज सनी डे. इट्स मीन कि यह एक धूप वाला दिन था, ओके. I had blank ice cream, okay. I had blank ice cream. तो students we can see that this word started ice cream, okay. This word ice cream started with vowel sound. Students read with me this word ice cream. Ice cream, we can see that the spelling of this word ice cream is ICECREM. The first letter of this word is I, okay. But when we read this word then this word sound beginning with the I, okay. जो कुछ स्टूडेंट्स इसकी स्पेलिंग आई से है ना, तो आइसक्रीम जिसको रीड करे तो क्या करे आइसक्रीम आ रहे है ना, तो आई से स्टार्ट है इसकी स्पेलिंग बट इसका जो रीड कर रहे हैं इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे आ से स्टार्ट है. आइसक्रीम, ओके. आ है एंड वी नो दैट आ मीन्स ए इट्स अवर वोवेल साउंड, ओके. तो स्टूडेंट दिस वर्ड आइसक्रीम स्टार्ट विथ वोवेल साउंड विच इज़ अवर
vowel. Okay, this word started with a. Okay, a, which is our vowel sound. So student write down here and before this word ice cream, because this word आइस क्रीम स्टार्टेड विथ वॉवेल साउंड. ओके, ये जो वर्ड है आइसक्रीम ये वॉवेल साउंड से स्टार्ट है ना, आ से स्टार्ट है. तो स्टूडेंट्स हम इसके पहले एन का यूज़ करेंगे. क्लियर? तो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर एन बिफोर दिस वर्ड आइसक्रीम. वेरी गुड. ओके, लेट्स सी. आई हैड एन आइसक्रीम. इट्स योर मीन ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, इट्स मीन कि मेरे पास एक आइसक्रीम थी. क्लियर? Let's see next sentence. Your next sentence is my brother had blank glass of mango shake. Okay, my brother means Meera bhai. Okay, and glass of mango shake. Student, we can see that this word glass started with consonant sound. Students, read with me this word. Glass, glass, g से start हो रहा है. g it's mean g. It's our consonants. Okay, consonants होता है जी हमारा, और जब इसको read करें तो consonant sound कर रहे हैं. Glass, g. Okay ना? And we have read that we always use a before words which started with consonant sound. So stand down in here a before this word glass, because this word glass started with consonant sound. Then our sentence become my brother had a glass of mango shake. It's mean मेरे भाई के पास mango shake का एक glass था. Clear? So students, we have completed this exercise and I hope you must have understood this exercise. You have no problem. Okay, now we are going to next exercise. Solve this next exercise. Okay, student, let's see exercise O. Okay, look at the page number 27. Okay, your exercise O is complete the paragraph with the words given in the box. Okay, complete means पूरा करिए the paragraph. Okay, with the words, शब्दों के साथ given in the box, box में दिए हुए. It's mean complete the paragraph with the words given in the box. It's mean बॉक्स में डिब्बे में दिए हुए शब्दों से पैराग्राफ को कंप्लीट करिए, पैराग्राफ को पूरा करिए. क्लियर? स्टूडेंट्स, योर हेल्पिंग वर्ड्स आर लिसन, फार्म, फाउंड, नॉटी, बेबी, होम, वरीड. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. सो लेट्स सी. योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज two goats used to live on a blank. Okay, तो two goats means दो बकरी. Okay, दो बकरियाँ used to live means रहती थी. Okay, on means पर, a means एक. Okay, तो two goats used to live on a, तो दो बकरियाँ रहती थी. तो स्टूडेंट्स, home, it's a correct word which we can write here in this first number blank to complete our first sentence of this paragraph. Okay, just write down here home or in this first number blank. Okay, then your sentence become two goats used to live on a home. It's mean दो बकरियाँ एक घर पर रहती थीं. Clear? And let's see second sentence. So second sentence is one day comma they had a blank. Okay, तो one day means एक दिन, day means way. Okay, तो students, the correct word which can be write here in this second number blank is baby. Okay, B-A-B-Y. So students, write down here in this second number blank baby, B-A-B-Y. Okay, then your sentence become one day they had a baby. It's mean एक दिन उनकी एक बेबी हुआ. ओके, एंड लेट्स सी सेकेंड नंबर थर्ड नंबर सेंटेंस. और थर्ड नंबर सेंटेंस इज दे नेम्ड हिम बिल्ली. ओके, तो दे मीन्स वे, नेम्ड मीन्स नाम रखा. ओके, हिम मीन्स उसका, बिल्ली. ओके, तो दे नेम्ड हिम बिल्ली. इट्स मीन उन्होंने उसका नाम बिल्ली रखा. ओके, बिल्ली. एंड लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. और नेक्स्ट सेंटेंस इज बिल्ली वाज वेरी ब्लैंक फुल स्टॉप. ओके, तो बिली वाज मीन्स थी, वेरी मीन्स बहुत. ओके, तो सिंस द करेक्ट वर्ड विच वी राइट डाउन हियर इन दिस blank to complete our sentence is naughty. N-A-U-G-H-T-Y. Naughty means शरारती. Then your sentence become Billy was very naughty. It's mean Billy बहुत शरारती थी. Okay, let's see next sentence. Your next sentence is sometimes he would go far away from blank for blank. Okay, full stop. It's means sometimes he would go far away from. The correct word which can be right here in this blank is farm. F-A-R-M, farm. Farm is system जहाँ goats रहती है उसे बोलते हैं farm. Okay, goat के house को बोलते हैं farm. वो समटाइम्स ही वुड गो फॉर अवे फ्रॉम फॉर्म. इट्स मीन कि कभी कभी वह अपने फॉर्म से, अपने घर से दूर चली जाती थी. ओके, तो मम्मा गोट एंड पापा गोट वॉन्ट हिम मैनी टाइम्स. ओके, मम्मा गोट एंड पापा गोट वॉन्ट हिम मैनी टाइम्स कॉमा बट ही डिड नॉट ब्लैंक फुल स्टॉप. ओके, तो उसकी जो मम्मी गोट थी और जो पापा गोट थे, वॉन्ट मीन्स चेतावनी दी. ओके, वॉन्ट इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ वॉन्ट. वॉन्ट मीन्स चेतावनी देना, वॉन्ट मीन्स चेतावनी दी. हिम मीन्स उसे, मैनी मीन्स बहुत, टाइम्स मीन्स बार. ओके, बट मीन्स लेकिन, ही मीन्स उसने, डिड नॉट. ओके, तो इट्स मीन कि जो मम्मा गोट और पापा गोट ने उसे बहुत बार चेतावनी दी लेकिन उसने, तो स्टूडेंट द करेक्ट वर्ड विच कैन बी राइट हियर इन दिस ब्लैंक टू कंप्लीट अवर दिस सेंटेंस इज लिसन. L-I-S-T-N. लिसन मीन्स सुनना. ओके, तो students, write down here in this blank listen, L-I-S-T-N, listen. Then your sentence become mama goat and papa goat warned him many times comma but he did not listen. Okay, it's mean
कि उसकी मम्मी जो मम्मी थी और उसके जो पापा थे, है ना, जो उसकी मम्मा गोट थी और जो उसके पापा गोट थे, उन्होंने बहुत बार उसे चेतावनी दी लेकिन उसने नहीं सुनी। ओके, इट्स मीन कि उसके जो मम्मा थे और जो उसके पापा थे वो उसे हमेशा बोला करते थे कि फॉर्म से, अपने घर से दूर मत जाया करो, है ना, अपने घर के पास ही प्ले किया करो, खेला करो। लेकिन वो क्या करती थी, वो कभी कभी निकल जाती थी अपने घर से, अपने फॉर्म से बहुत ज़्यादा दूर। ओके, तो इसके फादर एंड मदर ने, इसके मम्मा और पापा ने इसे वार्न किया हुआ था, इसे चेतावनी दी थी कि मतलब घर से बाहर मतलब घर से दूर ना जाया करो, लेकिन इसने एक भी नहीं सुनी। ओके, बट ही डिड नॉट लिसन, लेकिन उसने नहीं सुनी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट line. Okay, one day comma mama goat and papa goat could not find him. Okay, one day means एक दिन, mama goat it's mean उसकी जो माँ थी, and means और papa goat it's mean papa goat, उसके जो father थे। okay, could not find him, could not find, okay, find means पाना, ही miss उसे। तो one day mama goat and papa goat could not find him, तो एक दिन उसकी मम्मी और उसके पापा ने उसे नहीं पाया। okay, they got really blank full stop। okay, तो they means वे got really, गॉड मीन्स हो गए। ओके, या पाया, रियली मीन्स सच में। ओके, वाट्सो में। तो स्टूडेंट द करेक्ट वर्ड विच कैन बी राइट हियर इन दिस ब्लैंक टू कंप्लीट अवर दिस सेंटेंस इज वरीड, WORRIED, वरीड। देन योर सेंटेंस बिकम दे गॉट रियली वरीड, इट्स मीन वे वास्तव में चिंतित हो गए। ओके, वे वास्तव में चिंतित हो गए। एंड लेट्स सी सेकेंड नंबर, नेक्स्ट लाइन, योर नेक्स्ट लाइन इज दे सर्च इट एंड सर्च इट। ओके, दे मीन्स उन्होंने, सर्च इट मीन्स ढूंढा, सर्च इट इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ सर्च, सर्च मीन्स ढूंढना, सर्च इट मीन्स ढूंढा। ओके, एंड मीन्स और सर्च इट मीन्स ढूंढा। तो स्टूडेंट दे सर्च इट एंड सर्च इट, इट्स मीन उन्होंने ढूंढा और ढूंढा। ओके, तो जो उनका बेबी था तो वो नहीं मिला, तो वो सच में बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गए, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, परेशान हो गए। और दे सर्च इट एंड सर्च इट, इट्स मीन उन्होंने ढूंढा और ढूंढा। ओके, एट लास्ट दे ब्लैंक हिम प्लेइंग विथ अदर बेबी गोट, एट लास्ट मीन्स अंत में, दे मीन्स वे। ओके, हिम मीन्स उसे, प्लेइंग मीन्स खेल रहे थे, विथ मीन्स विथ साथ में, अदर मीन्स दूसरे, बेबी गोट्स मीन्स बकरी के बच्चों से। ओके, तो स्टूडेंट द करेक्ट वर्ड विच कैन बी राइट हियर इन दिस ब्लैंक टू कंप्लीट अवर दिस लास्ट सेंटेंस इज फाउंड। ओके, ये जो लास्ट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो हम वर्ड है यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं वो है फाउंड। ओके, FOUND, फाउंड। तो स्टूडेंट्स, found it's the second form of find means पाना, found means पाया। okay, and then your sentence become at last they found him playing with other baby goat, it's mean अंत में उन्होंने उसे दूसरे बकरियों के बच्चों के साथ खेलते पाया। क्लियर? तो स्टूडेंट, वी हैव completed this exercise O and I hope you must have understood this exercise O, and you have no problem in any sentence of this exercise. Okay, so students, let's see exercise B. Okay, your exercise B is meet Gauri. Okay, it's mean Gauri simile, she is Gauri, ye Gauri. Okay, she is enjoying ice cream. Okay, and she loves eating ice cream. We can see in this picture that she loves eating ice cream. Okay, बहुत ही enjoy करके आइसक्रीम को eat कर रही है। तो we can see that she love enjoying ice cream. Okay, तो she loves in eating ice cream. Okay, तो she loves eating ice cream, it's mean वह loves means पसंद करती थी, eating means खाना, आइसक्रीम। ओके, meet गौरी, गौरी से मिली है। she loves eating ice cream, it's mean वह आइसक्रीम खाना पसंद करती है। ओके, she does not like running. Okay, she means उस वह, और does not it's your, does it's your present independent tense helping verb in a singular form. Okay, not means नहीं, like means पसंद करती, run means दौड़ना। she does not like running, it's mean वह दौड़ना पसंद नहीं करती है। ओके, वह रन करना पसंद नहीं करती है। ओके, what do you like, आप क्या पसंद करते हैं? what are the things you do not like? Okay, what are the things, it's mean ऐसी क्या चीज़ें हैं you do not like, जिसे आप पसंद नहीं करते। share your likes and dislike in a few sentences, अपनी पसंद। ओके, शेयर मीन्स साझा करिए, बांटिए। योर मीन्स अपनी, लाइक्स मीन्स पसंदों को, एंड मीन्स और डिसलाइक्स इट्स मीन नापसंदों को, जो आपको नहीं पसंद है। इन अ फ्यू सेंटेंसेस, इट्स मीन कुछ वाक्यों में। ओके, शेयर योर लाइक्स एंड डिसलाइक इन अ फ्यू सेंटेंसेस, इट्स मीन अपनी पसंद और नापसंदों को कुछ सेंटेंसेस में, कुछ वाक्यों में शेयर करिए, साझा करिए, बांटिए। यू कैन टॉक अबाउट फूड, गेम्स, बुक्स और एक्टिविटीज़ यू लाइक एंड डू नॉट लाइक। ओके, यू मीन्स आप एंड मीन्स सकते हैं, टॉक मीन्स बात। ओके, अबाउट मीन्स बारे में, फूड मीन्स खाना, और गेम्स मीन्स खेल। ओके, बुक्स मीन्स किताबों, और मीन्स या एक्टिविटीज़ मीन्स
जो वर्क होता है ना, एक्टिविटीज़ मीन्स हमारे जो क्रियाकलाप हो गई, यू मीन्स आप, लाइक मीन्स पसंद करते, एंड मीन्स और डू नॉट लाइक मीन्स नहीं पसंद करते. यू कैन टॉक अबाउट फूड, गेम्स, बुक्स और एक्टिविटीज़ यू लाइक एंड यू डू नॉट लाइक. ओके, इट्स मीन कि आप फूड के बारे में, गेम्स के बारे में, बुक्स के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर सकते हैं जो आपको पसंद है और नहीं पसंद. ओके, सपोज दैट आई गिव यू एग्जाम्पल. जैसे स्टूडेंट्स, आपको फूड, गेम्स और बुक्स और एक्टिविटीज़ के बारे में आपको अपने फ्रेंड से बता सकते हैं, पेरेंट्स से बता सकते हैं, अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं. आपको ये शेयर करना है. ओके, तो आपको फूड, गेम्स, बुक्स या एक्टिविटी के बारे में बताना है कि जो आपको पसंद है या जो नहीं पसंद है. सपोज दैट जैसे मैं फूड की बात करूँ कि आई लाइक चॉकलेट्स वेरी मच. ओके, एंड आई डिड नॉट लाइक pumpkin and butter guide and cucumber. Okay, तो bitter gund and bitter gourd, cucumber और pumpkin I did not like it. Okay, तो मुझे जो cucumber हो गया, ककड़ी हो गई, या pumpkin हो गया, या जो bitter gourd हो गई, पसंद नहीं. और चॉकलेट्स मुझे बहुत पसंद. तो इट्स अ फूड. ओके, डेट विच आई लाइक एंड आई डोंट लाइक. ओके, जो मुझे पसंद और नहीं पसंद. ओके, एंड जैसे आई लाइक मोस्ट प्लेइंग हाइड एंड सीक. ओके, तो एंड बट आई डोंट लाइक जैसे कोई भी गेम ले लो आप जो आपको पसंद नहीं है. ओके, जैसे मुझे तो सारे गेम्स ऑलमोस्ट पसंद है. ओके, वो लूडो हो गया, कैरम हो गया, या बैडमिंटन हो गया, हाइड एंड सीक हो गया. तो जैसे वी कैन से डेट आई लाइक मोस्ट बैडमिंटन एंड कैरम एंड चेस. ओके, एंड बुक्स की बात करें तो आई लाइक टू रीडिंग बुक्स, आई लाइक टू रीडिंग स्टोरीज, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. ओके, एंड माई फेवरेट स्टोरी इज सिंड्रेला. ओके, एंड एक्टिविटीज़ की बात करें तो आई लाइक डांसिंग, सिंगिंग. ओके, एंड नोइंग इंटरेस्टिंग थिंग, न्यू थिंग्स. तो ऐसे ही आपको अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में आपको बात करनी है अपने फ्रेंड से, या अपने मदर एंड फादर से, या अपने रिलेटिव से, जो भी आपके पास हो. ओके, तो it's your 2 days homework. ओके, दैट कंप्लीट एक्सरसाइज बी ऑफ दिस चैप्टर 3. या आपको एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है, अच्छा आपका होमवर्क है. क्लियर? So send today's your classwork is that complete exercise A of this chapter 3, which is on page number 26, and after it complete exercise O, which is on page number 27 of this chapter 3 in your English literature book. As we said, it's a 2 days class, and since your homework is that complete exercise B of this chapter 3. ओके, इट्स अ 2 days होमवर्क. तो आपको स्टूडेंट क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा वर्क है. योर होमवर्क इज़ लाइक अ एक्टिविटी. एक एक्टिविटी की तरह आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी लाइक्स और डिसलाइक को शेयर करना है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके, या अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ, कि आपको फूड, गेम्स, बुक्स या एक्टिविटी आपको जो लाइक करते हैं या जो नहीं लाइक करते, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है. क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा वर्क है आपका, आज होमवर्क है. एंड स्टूडेंट, आपका क्लास वर्क है कि आपको एक्सरसाइज ए जो आपकी पेज नंबर 26 पे है, और एक्सरसाइज ओ जो पेज नंबर 27 पे अपनी बुक, इंग्लिश लिटरेचर बुक एज वी सिस्टम में कंप्लीट करें. इट्स अ 2 days होमवर्क. ओके, सॉरी, इट्स अ 2 days क्लास वर्क. ओके, तो स्टूडेंट, आई होप you must have understood your class and homework. So all students, please complete your classwork. Complete exercise A of this chapter 3, which is page number 26, and after it complete exercise O, which is page number 27 of this chapter 3 in your English literature book as we said, and send me your work here. Thank you.